Good morning, everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to start ray optics. As we all know that syllabus is reduced, so CBSE has removed the part reflection of light and spherical mirrors. Means reflection through spherical mirrors and reflection of light is not in our course. So I am starting only from refraction of light. All right, so firstly we will introduce or we can say we will remind all the previous concepts we have already studied in our basic classes. So firstly, what is refraction? According to definition, I am not writing definition here because definition is very basic. The phenomena of the change in the path of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. This will be provided to you in your PDF form. So doesn't need to write this in our today's class. So as we know, when light travels in the same homogeneous medium, it travels along a straight path. But when it passes obliquely from one medium to another, the direction of its path changes and the interface of the two media is the border point, or you can say the deciding point where the light ray is going to bend. So we can say there are three type of lines: incident ray, reflected ray and normals. Incident and reflected ray are actual ray and normal is the deciding line which will decide how much line is going, at which we can define how much light is going to bend. So the path along which the light travels in the first medium is called incident ray, and that in the second medium is called refracted ray. This all you know. There are two angles which were introduced in our previous classes, that is angle of incidence and angle of refraction. So what is this? The angles which the incident ray and the refracted ray make with the normal at the surface of separation are called angle of incidence and angle of refraction respectively. Alright, so here I am making a basic diagram which you all know very well. That is, if I have this interface media, this is the interface media, one light ray like this is incident here. So firstly make a normal at that point where light is incident. This line which is perpendicular to our surface, this is our surface. Here it is, we say it is glass, here it is air. Alright, so here it is, as you know about refractive index, it is somewhat denser with respect to this. So light ray will travel towards, ये हमारी बेसिक नॉलेज से क्यों होता है ये हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. So this here, this angle is called angle of incidence represented by I. This angle is called angle of refraction represented by small r. This is incident ray. This is refracted ray. हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं केवल. ये हमारा हो गया नॉर्मल लाइन, ठीक है. ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है. तो ये हमने बेसिक्स जाना. एक और चीज़ जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करने वाला है कि लाइट रे किधर कितना बेंड हो रही है, ज़्यादा बेंड हो रही है कि कम बेंड हो रही है. तो अगर मान लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस होता है, इस तरह से लाइट आती, तो क्या होता है हमको पता है ये सीधे चली जाती है, चाहे यहाँ कोई भी मीडियम हो. ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पे उल्टा प्रोसेस रहा होता, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको जानकारी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ भी फालतू की डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे ग्लास ऐसा करते हैं, इधर एयर रख देते हैं, एयर और ये ग्लास. अब अगर यहाँ से ये नॉर्मल लाइन है इसकी, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, मान लीजिए ये ऐसे. अब इसके साथ क्या होने वाला है, ये
रेयर मीडियम में जा रही है दूर हट जाएगी, यानी इंसिडेंस एंगल अगर यहाँ पे आई है और ये रिफ्रैक्शन एंगल आर होगा और आर एंगल बड़ा होगा आई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक आइडिया। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में और देखेंगे। सी there are two laws of refraction which you all know, that is one related to the position or the plane of the incidence and other is the angles. So there are two laws. First law is the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. Second law क्या था? The ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of media. So for considering a pair of media like vacuum, or you can say the media 1 and media 2, so we can say according to second law it says sine I by sine R is equals to mu 2, where mu is the refractive index of the second medium, mu 1 with refractive index of the first medium. इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने 10th में पढ़ा होगा 1 mu 2। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और होता है 1 mu 2। इन सभी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिसके तरफ जा रही है रे उसको हम आगे लिखते हैं सफिक्स में और प्रीफिक्स में किस में, जहां से जा रही है रे। ठीक है, तो इसको हम एक नाम और देते थे अगर आपको याद हो, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो ये सब चीजें बेसिक है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। नाउ कम टू द पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। See, the refractive index of a medium for a light of given wavelength may be defined as the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in that medium. It is all about in the form of speed of light. मतलब refractive index क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के लिए, ठीक है, एक मीडियम है उससे दूसरे मीडियम में जाने में स्पीड ऑफ लाइट में कितना परिवर्तन आया। किस मीडियम से किस में जाने में, वैक्यूम से किसी मीडियम में जाने में या मीडियम से किसी वैक्यूम में जाने में। तो वैक्यूम को हमने एक बेस बना के चला हुआ है। सो वी कैन राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म ऑल्सो, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू, अगर लाइट की स्पीड वैक्यूम में स्मॉल सी लिया तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में जिस मीडियम में जा रही है लाइट उसमें स्पीड ऑफ लाइट। मतलब क्या है कि अगर यहां से यहां पे जा रही है, यहां वैक्यूम था, वैक्यूम, और यहां कोई मीडियम था, यहां से यहां लाइट रे गई, ठीक है, और ऐसे को आगे बढ़ी, ठीक है। हियर इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज c एंड हियर इट इज v, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज c by v। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, जब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में समझाते हैं, किसी मीडियम का रिस्पेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में समझाते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अगर हम किसी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में एक मीडियम को समझाते हैं, यानी वैक्यूम भी एक मीडियम है, लेकिन जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाएंगे या डिफाइन करेंगे, देन वी विल से दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट मीडियम्स, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी सेड टू बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, ये सब हमारा 10th का पार्ट था। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम अगले उस पॉइंट पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम का नेचर कैसा है, वेवलेंथ कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, ये भी इसीलिए मैंने कहा था ना पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ की रिफ्रैक्टिव मतलब लाइट लेना है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हो। सो वी कैन से
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑल्सो अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर अगर किसी मीडियम का बढ़ेगा तो उसके अंदर के पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ऑल्सो। वन मोर थिंग, द नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम ऑल्सो, आसपास का मीडियम कैसा है इस पर भी डिपेंड करने वाला है, मतलब मीडियम के आसपास का मीडियम कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। नाउ विल कम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। ऑलराइट, सो what is the refractive index in terms of wavelength? See, the refractive index of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium। लेकिन ये आया कहाँ से, मतलब जैसे हम स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे ही वैक्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आया कहाँ से है उसको देख लेते हैं। हमने भी क्या पढ़ा, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ इफ आई एम पुटिंग द formula v equals to n lambda, the velocity is equals to frequency multiplied by wavelength, velocity equals to frequency multiplied by wavelength. So this will be the velocity of light in vacuum, so the wavelength in vacuum multiplied by the frequency, और frequency मीडियम में नहीं चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यही न्यू रहेगी। सिमिलरली अगर उस दूसरे मीडियम में लाइट को लेके गए तो इसकी उस मीडियम में कुछ और होगी, यानी मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो लिख दिया, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होनी नहीं है, दोनों ही मीडियम में उस सेम लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। देन वी कैन से इट इज लैम्डा वैक्यूम टू द लैम्डा मीडियम। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट, this is the refractive index of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that particular medium. Now what is the cause of refraction? देखिए cause क्या होता है, आप सबको पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम के डिफरेंस के कारण वहाँ पे जो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। आपने तो सुना था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, बट इट इज कांस्टेंट फॉर वैक्यूम ओनली। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। सो वी कैन से द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट passes from one medium to another medium. All right, so as we know from our basic जानकारी जो भी कुछ है, बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ये 1 म्यू 2 है ना दूसरे वाले मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1। तो ये हो गया, इसको हमने बढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, क्योंकि जैसे वैक्यूम से वहाँ जा रहे थे ना मीडियम में, वैसे यहाँ V1 से V2 में जा रहे हैं। सो अब यहाँ देखिए जरा सोचिए, अगर मान लीजिए पहला केस V1 V2 से बड़ा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज मोर देन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज मोर देन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो अब हम ये कहेंगे, आप अभी तुरंत कह सकते हैं कि सर ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। क्यों? अब आपने कहा कैसे, ये यहाँ दिख भी रहा है, देखिए। देन क्या होने वाला है, ये जो है ये 1 से बड़ा होने वाला है ना, 1 म्यू 2 इट इज ग्रेटर देन 1, ये होगा ना क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा, साइन आई जो होगा वो बड़ा होगा साइन आर से। तो इसका सीधा मतलब है, देखिए सीधा मतलब क्या निकलने वाला है इसका, साइन आई साइन आर से बड़ा है तो आई भी आर से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जो हमारी रे होगी उसमें कुछ, मैं जल्दी से छोटा सा बना दे रहा हूँ ऐसे, ये अगर हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंगल जो है यानी ये वाला एंगल जो डॉट ये बना, ये
नीचे जाने वाले एंगल से बड़ा यानी नीचे वाला एंगल और छोटा होगा। ये देखिए छोटा हो गया, ये आर एंगल है। तो समझ में आ रहा है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। सिमिलरली दूसरा वाला देखिए क्या होगा, सेकेंड, if v1 is smaller than v2 then obviously 1 mu2 is smaller than 1, है ना। 1 mu2 का मतलब ये खुद में क्वांटिटी है, तो sin i is smaller than sin r, ठीक है। तो वी कैन से i is smaller than r। और यहाँ फिगर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, ये हो गया हमारा एंगल i और r से छोटा है तो r दूर, ठीक है। तो ये बड़ा r हो गया। अब यहां पे आप ये कह सकते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल गया ना ये, और ऐसे मीडियम को कहते हैं कि यहां पे पीछे लाइट की स्पीड कम थी, आगे ज्यादा हो गई। सो इट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर। सेकेंड इज सेकेंड मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, जिसमें नॉर्मल से दूर हट गई, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम था। यहां नॉर्मल की तरफ गई थी, सो सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वाइवास में एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। सी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या चीज़ होती है किसी भी टॉपिक में, कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सोचिए कि उसका हम फिजिकली यूज़ कैसे कर रहे हैं या हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रख रही है अपने ऑब्जर्वेशन में। सो as you know, the value of refractive index gives information about the direction of bending of refracted ray, कि कितना बेंड कर रही है। so first one is this thing, पहला tells about the direction of bending of refracted ray, है ना। एंड सेकेंड इज व्हाट, और क्या किया करते हैं हम, ये भी तो पता लगाते हैं कि उसकी स्पीड जो है, जो सेकेंड वाली मीडियम में गई एक लाइट, वो पहली वाली मीडियम यानी पहला मीडियम कह लें, या तो फिर ये कह लें कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं इट टेल्स the ratio of speed of light in any medium to the speed of light in vacuum, ठीक है। तो ये भी बताता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज यूजुअली आस्क्ड इन 1 मार्क्स ओनली, दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या चीज़ है, एर्थ क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है, एर्थ नहीं 7th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। देखिए क्या है वो, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, फर्स्टली कम टू दिस पॉइंट। मान लीजिए कि आपका कोई इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस पे कोई नॉर्मल है, दिस वन इज अवर नॉर्मल, वन लाइट इज इंसिडेंट हियर, दिस इट इज मेकिंग एंगल आई। कंसिडर दिस एज रेयरर, इसको हम कह लें ये रेयरर है, और ये कंपैरेटिवली डेंसर है। देन यू ऑल्सो नो दैट द लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, नहीं डेंसर है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे है ना।
तो यहाँ आपको पता है कि I जो होगा वो बड़ा होगा R से। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, ऐसे एक प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि ये जो रे इस तरह से चल के आई थी वो अपने उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी अगर उसको रिफ्लेक्ट करा दिया जाए उसी एंगल पे वापस। समझ रहे हैं? ऐसे अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फाइनल path of a ray of light after it has suffered several reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly. Sorry. So this is the statement. Now we will prove it. Its proof is very easy. आप खुद भी देख पाएंगे, बड़ा आसान है। हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। Consider this as A, B, C. Now this is N dash. All right. So according to our figure, we can say angle of incidence हम ऐसे लिख लेते हैं, for moving forward ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ए बी एन आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा आगे जाने के लिए? एन डैश बी सी, सी बी एन डैश इज इक्वल्स टू आर। So from Snell's law, sin I by sin R is equals to सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 कह लीजिए, पहले वाले का μ1 कह लीजिए। μ2 बाई μ1, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 μ2। इक्वेशन 1 रख लीजिए अब इसको। अब इसी बात को रिट्रेस करते हैं, उल्टा चलते हैं। फिगर ध्यान से देख लीजिए, जब हम उल्टा चल रहे होंगे, जब हम नीचे से ऊपर चल रहे होंगे तो इंसिडेंस एंगल, ये इधर से अब रे चलना शुरू करी, इधर से इधर, तो इंसिडेंस एंगल का काम इसने किया ना, तो इंसिडेंस एंगल आर होगा। और जब हम इस मीडियम में पहुंच जाएंगे तो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल आई हो जाएगा। यानी जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो इंसिडेंस एंगल विल बी आर एंड रिफ्रैक्शन एंगल विल बी आई, एंड मीडियम विल बी, फर्स्ट मीडियम विल बी μ2 एंड सेकंड मीडियम विल बी μ1। ऑलराइट, सो अप्लाइंग दिस, moving backwards while moving backwards, what will happen? Angle of incidence, it is equals to angle I, है ना? एंगल I नहीं, इंसिडेंस है ना, नीचे से ऊपर, एंगल आर। रिफ्रैक्शन एंगल इट इज एंगल आई, जो बाहर मिला दोबारा से नीचे से ऊपर जाने में। मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं एक रफ में। दिस टाइम वी आर मूविंग लाइक दिस, हियर दिस एंगल इज गिवन एज स्मॉल आर एंड हियर दिस एंगल इज गिवन एज स्मॉल आई। So it is angle of refraction, it is angle of incidence. Here it is μ2, here it is μ1. From Snell's law, we will get, see, sine of I नहीं होता हमेशा, sine of incidence angle, here incidence angle is R, and upon sine of
refraction angle and it is I, and it is refractive index of the first medium to the refractive index of the second medium. लेकिन यहाँ फर्स्ट क्या है, μ2 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, यानी ऊपर इसमें क्या स्नेल्स लॉ में रखते हैं, जिसमें जा रही हो, तो पहले μ2 रखते थे ना, तो जिसमें जा रही है अब इस बार μ1 है, और यहाँ जाने वाली कहाँ से जा रही है इसको नीचे रखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी दिस मीडियम या जिसमें जा रही है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, तो μ1 by μ2 दिस टाइम. सो इट इज इक्वेशन, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ऊपर है ना तो 1 को आगे आप प्रीफिक्स सफिक्स में लगाओ और 2 को पीछे प्रीफिक्स में लगाओ. इट इज इक्वेशन 2. नाउ मल्टीप्लाइंग 1 and 2. 1 and 2 will get sin I by sin R. पिछली वाली से मैं लिख रहा हूं और इस वाली को इधर LHS LHS RHS RHS मल्टीप्लाई होगा, इट इज sin R by sin I and it is equals to μ2 by μ1 पहली वाली इक्वेशन में था और μ1 by μ2 दूसरी वाली इक्वेशन में है. और वी कैन से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1. ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, इसी का शॉर्ट नोट है. सो कट यहाँ पे हो जाएगा, देन वी विल गेट 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1, इट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना, देखो ये कट के, तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. और वी कैन से 1 μ2 इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 μ1 कह सकते हैं ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, refractive index of the second medium with respect to first medium is equals to reciprocal of the refractive index of the first medium with respect to second medium. So I am writing it again in the form of words. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal of the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. जो वहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ वर्ड्स में लिखा है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट सम बेसिक्स. नाउ वी विल कम टू अवर particular topics which is usually asked in board examination also. ये तो 1 मार्क्स में आते हैं, लेकिन बड़े मार्क्स में जो आते हैं और ऊपर से जो हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं, दिस विल बी स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स. ऑल राइट, थैंक यू.